करंटली आपकी टोटल कॉम्पनसेशन कितनी है? Right now I stand at 1.05 lakhs here. I have two special enabled daughters, that is, they are mentally and physically challenged. You know, we sort of had a family separation, so we had to come here, relocate during the COVID. मेरे consumer loans भी चल रहे हैं, मैंने फ़ोन लिया है, लैपटॉप लिया है. How much do you end up saving each month? मतलब आपके सारे खर्चे सब डाल के आप सेव कर पाते हैं? Frankly, हेलो एंड वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ फिक्स योर फाइनेंस। आज हम दिल्ली में, मैं जनकपुरी एरिया में हूँ और मेरे साथ है डॉक्टर हितेश। हितेश पिछले 2-3 साल से दिल्ली में रहते हैं और आज इनके फाइनेंसेस को समझेंगे एंड विल ट्राई टू फिक्स हिज फाइनेंसेस। हितेश जी, वेलकम टू द शो। कैसे हो आप? आई एम वेरी गुड एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट यू टू वेलकम टू माय स्मॉल अबोर्ड हियर. थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी टू योर प्लेस। हितेश जी, आप बता सकते हैं कि आप अभी करते क्या है, आपके फैमिली में कौन कौन है? Right. So I work for a multinational company and I am a medical compliance specialist there. And in terms of my family, we are a family of 4. I have two special enabled daughters, that is, they are mentally and physically challenged. So basically my entire purpose of coming to Delhi was getting a free treatment for them because these treatments are quite expensive. Okay. So both of my kids are basically Down syndrome kids. Understood. And when did you shift to Delhi? There's a short thing behind it because I was in Mumbai and then, you know, we sort of had a family separation, so we had to come here, relocate during the COVID. And it's been like what, 2020 say we are here, so it's been almost 4 years now. ठीक है. And how is Delhi treating you and your Delhi is fun. Delhi is a good place, and then again it's a stopover for our spiritual place also because then we have an easy access to Vrindavan or Radha Kund. Okay. Yeah. And is spirituality a big part of your family? Spirituality plays a major significance in our entire day-to-day routine. परफेक्ट ठीक है। तो हितेश जी, आप कितने साल से डॉक्टर हो और करंटली आपकी टोटल कॉम्पनसेशन कितनी है? सो प्रैक्टिस करते करते एंड विद कॉर्पोरेट जॉब्स इट्स बीन ऑलमोस्ट 14 इयर्स. राइट नाउ आई स्टैंड एट 1.5 lakhs? Sorry, 1.05, sorry. 1.05 lakhs per month. एंड आपकी कंपनी जो है वो क्या क्या बेनिफिट्स और पर्क्स ऑफर करते हैं? कंपनी EPFO के लिए दे रही है और मेडिकल दे रही है. Okay, and is your entire family covered under yes, my medical entire insurance? Yeah, so it's around 5 to 6 lakhs का कवरेज है हमारा. Okay. So personal नहीं है, personal जब हम joint family में तभी था. Okay. So we are not very sure कि अभी वो चालू है कि नहीं है. And since you currently have 2 special kids, does the insurer also cover them in case they are hospitalized? Yes. So they are covered there, but not for their congenital diseases. Okay. They may be covered for any, you know, newborn, any kind of a disease which is there in their list. But sorry to say, I've never ever seen any medical coverage or any medical insurance which hovers around congenital diseases. Okay. So the health insurance that you currently have will cover your kids. Will cover my in kids. case they are hospitalized for some reason for any other illness. Illness, yes. For any or the illness which is there in their parameter, yes. But again, if it is related to some their medical condition, existing medical condition, that will not because there's no OPD coverage for these kind of. ठीक है. So which means that you have to make sure that their expenses are covered even if you are not around for any reason. Yeah. Right? The cheapest way to ensure a family's future is a term life insurance. Currently, do you have a term life insurance? No, I don't have a term life insurance, but I'm aware of how term life insurance actually manages. Because again, for me, it looks like a gamble. I'll be very much honest. And the reason why is because at the end of the day, even if I pay, except I think is the group who could, you know, give your, if you go for their premium plans, they would revert your money back into your account after a certain payment of premium if not used. But otherwise, if the premium is not used in most of the cases, the money is gone. So yeah. For me, I don't want to get into anything, you know, which is against the law of spirituality.
But how is it a gamble? Like you are basically Securing. you are paying a small amount every single month to make sure that if something happens and if I'm not around or because of some accident I'm not able to earn and provide for my family, the insurance company will pay a very big cover which you can then invest in a fixed deposit and withdraw every month to provide for your family. How is it a gamble? So okay, for me, what I personally think is, again, because it's a part of spirituality, and I'm not saying कि हम अजर या अमर हैं, but people who regularly wake up in the morning, do their rituals, pray, and who have a decent healthy lifestyle are not really susceptible to what the term insurance covers. But again, I think I need to think beyond this. So definitely I'll give it a thought about it. The reason why I understand your spiritual concerns, but here it's not just about you. Right. It's not about you. I understand. You have to think beyond yourself. Right. It's about taking care of your kids, right? I'll give you a very simple math wherein you can cover your kids and your expenses will be taken care of even if you stop working. Okay? आपकी current age है 41, ठीक है? Let's say कि हम ये आपको 65 तक protect करेंगे कि 65 तक अगर कुछ भी हो गया then this term insurance will pay you money. Right. ठीक है? Monthly expenses बताइए, medical expenses जो है, जो आपको इतना amount तो चाहिए ही चाहिए हर महीने बच्चों को ख्याल रखने मेरा के लिए। मेडिकल एक पार्ट जो है मेरे बच्चे के स्कूलिंग में इंक्लूडेड है, which is like an OTPT and all in treatment program which is there in the school for which I pay 15,000. Okay. फिर बाद में थेरेपीज होती हैं 1500 2000 की, जो कि 6 या 7 सेटिंग्स में जाती है फॉर बोथ ऑफ द डॉटर्स. ठीक है. तो आप 10,000 वहाँ पे पकड़ लो. ठीक है. फिर बाद में आप पकड़ लो कि मेडिसिन हैं, तो मेडिसिन का एक बहुत चंक जो है 5,000 रुपीज़ उसमें जाता है. मैं डायबिटिक और ब्लड प्रेशर है मुझे, तो मेरा भी 3,000 4,000 रुपीज़ उसमें जाता है. ठीक है. And so I have something called as a visit app from my company as a support in which I can reimburse around 10K per year for either a OPD or for the blood works or medication that I'm opting for. तो चलो 10K का support वहाँ से मुझे मिल जाता है per year. ठीक है. Other than that per year. ठीक है. Yeah. ठीक है. तो आपके महीने के अराउंड 35,000 तो 30% is what we invest in all this. ठीक है. Out और of आपके a करंट आउटस्टैंडिंग लोन्स है कुछ? एक छोटा सा एक मतलब PL है छोटा सा. ठीक है. 5K का. 5 नहीं टोटल उसका कितना अमाउंट बचा हुआ है अभी तक? I think around 1 L. आपके 30,000 के जो फिक्स्ड मंथली एक्सपेंसेस है आज के दिन, वो करीब 1 लाख रुपए हो जाएंगे बाय द टाइम यू टर्न 65. ठीक है. टर्म इंश्योरेंस को हमें ऐसे देखना है कि ये अमाउंट जब आएगा, दिस अमाउंट शुड बी इन्वेस्टेड इन द फिक्स्ड डिपॉजिट. ओके. ताकि उससे जो भी आपका इंटरेस्ट बन के आ रहा है, दैट इंटरेस्ट शुड बी इनफ टू टेक केयर ऑफ दीज एक्सपेंसेस. तो आज के दिन आपके 30,000 के मंथली खर्चे साल के हो गए 3,60,000. अगर आपको इसको रिप्लेस करना है तो आपको चाहिए रहेगा 60 लाख रुपए की एक फिक्स डिपॉजिट, है ना? वो 60 लाख से आप हर महीने आपके जो आएगा उससे आपके मंथली एक्सपेंसेस निकल जाएंगे. टर्म इंश्योरेंस, राइट? And that's only when I am not there. Yes. Income. Right. Now the point is, life is so uncertain that you should plan for your kids. ये clarity of thoughts ही है जो बहुत कम लोग दे पाते हैं. And I'm glad we met. So and you're giving me and we are talking about it. So yes. So first thing first, आपको अगले 6 महीने में 35 से 40,000 बचाने हैं to get this particular term insurance. Sure. अगली चीज, नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर एक्सपेंसेस सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड वेयर वी कैन सेव मनी. ठीक है. सबसे पहले ये घर आप दिल्ली में शिफ्ट हुए, राइट? ये रेंट में रहते हो, कितना है इसका? अभी हम 14 दे रहे हैं. नेक्स्ट है खाना, ग्रोसरी, गोइंग आउट, ये सारे चीज़ों में खाने पीने का एंड ग्रोसरी पूरा मिला के 15K के आजू-बाजू. ठीक है. Which also includes Zomato. ठीक है. Which is very very decent for a family of 4. 15,000 तो लग जाएंगे खाने में. अगली चीज़ है ट्रैवलिंग. आपका ऑफिस तो वर्क फ्रॉम होम है, बट क्या आपको रेगुलर ट्रैवलिंग, बच्चों को स्कूल वगैरह भेजने में? हाँ, तो उसके लिए एक वैन हमने फिक्स किया, 1,500 रुपीज़ हम उसमें देते हैं. ओके, ठीक है. सो ट्रैवलिंग में वैन प्लस आप लोगों के कम्यूट पर कितना लगता होगा? अराउंड 3-4K. अगला आपका जो फिक्स्ड एसेंशियल एक्सपेंस है वो है मेडिकल फीस एंड स्कूल फीस. राइट. उसमें कितना जाता है? स्कूल में मैं ऑल इंक्लूसिव प्रोग्राम के लिए 15 दे रहा हूँ और मेडिकल
in terms of medicine. मेडिसिन वगैरह कोई Right, मेडिसिन है, कंसल्टेशन है, उसके हम अराउंड पाँच और बच्चे के 7 एक कार्ड दे रहे हैं. 23,000 per month. Right. Does this cover both the kids? Yeah. इसके अलावा कोई फिक्स्ड expenses that parents of special kids have? मेरे ख्याल से मेडिकल इज द बिगेस्ट लाइबिलिटी दैट वी हैव. Unfortunately, neither the government nor the private doctors or insurers will cover all this. Okay. Because But there is a government scheme here called Niramay. Have Okay. you heard of No, I Niramay have not scheme? heard of Niramay. ठीक है, 500 रुपए उसका ज्वाइनिंग फी है. Okay. ठीक है, एंड हर साल आपको उसको रिन्यू करने के लिए और 500 रुपए लगेंगे. पर ईयर one disabled individual is covered up to 1 lakh rupees. Okay. ठीक है. For the medical expense? Yes, so hospitalization is covered up to 50,000 and उनके जो outpatient जो costs वगैरह है that is covered up to 20,000. So is this a private institution or a This is a government? government scheme. This is a government scheme. निरामया scheme. Okay. ठीक है, मैं आपको उसका एक फॉर्म भर दूंगा. ठीक है, आप दोनों बच्चे को उसमें एनरोल कीजिए. 1,000 रुपए की कीमत में यू आर बेसिकली टेकिंग केयर ऑफ देयर एक्सपेंसेस अप टू 2 लाख रुपीज. So OPD, IPD, medicine, everything is covered. OPD is up to 15,000. Okay. Hospitalization is up to 55,000. So वो 1 लाख में भी 4 अलग-अलग कैटेगरीज. What about the diagnostic intervention? डायग्नोस्टिक्स उसका मैं अभी आपको बता देता हूँ. ये निरामय का है ना? यस, तो ये देख सकते हैं आप 1 लाख रुपए तक का आप इंश्योर्ड हो फॉर अ फी ऑफ 500 रुपीज. हॉस्पिटलाइजेशन इज कवर्ड अप टू 70,000. आउट पेशेंट डिपार्टमेंट आपका जो ओपीडी के खर्चे है वो 15,000 रुपए पर ईयर तक कवर्ड है. थेरेपीज टू रिड्यूस इम्पैक्ट ऑफ डिसेबिलिटीज 10 कवर्ड अप टू 10,000 पर ईयर. ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ 1,000 रुपीज. ऑल्टरनेटिव मेडिसिन ऑफ 4,500. और आपके केस में आपको एनरोलमेंट फी 500 रुपए देना पड़ेगा और हर साल आपको 500 रुपए देना पड़ेगा. Wonderful, that's a nice scheme. तो 1,000 रुपए पर ईयर में आपका बहुत बड़ा खर्चा निकल जाएगा. इस स्कीम से आप टोटल हर साल 26,000 बचा सकते हो इवन इफ दे आर नॉट हॉस्पिटलाइज्ड. एंड आपके केस में 2 है तो 52,000 यू कैन सेव बाय पेइंग 1,000 रुपीज. ये मैं आपको ये पूरे स्कीम के बारे निरामया स्कीम के बारे में सारे डिटेल्स और फॉर्म्स आपको भेज दूंगा. You should enroll your kids right away. I'll do that. ठीक है. Thank you. इसी के साथ साथ क्योंकि आप करंटली टैक्स भर रहे हो, आप हर साल कितना टैक्स भरते हो? 20%, 30%? 30% है. 30% टैक्स, राइट. तो यहाँ पे हम लोग को हर चीज ढूंढनी चाहिए जिससे आप टैक्स बचा सकते हो, राइट. इन योर केस द सेक्शन 80DD will come to your rescue. ठीक है. Here you can claim a fixed deductible amount of 75,000 rupees if the dependent's degree of disability is more than 40%. Per kid. Nice. If the disability is above 80%, then you can claim a reduction of 1.25 lakhs. एंड इन दोनों केस में आपके एक्चुअल एक्सपेंसेस अगर कम भी है फिर भी आप ये फ्लैट अमाउंट क्लेम कर सकते हो. सो इन योर केस यू कैन क्लेम एनीवेयर बिटवीन 1,50,000 to 2,50,000 डिपेंडिंग ऑन द परसेंटेज, राइट. बट ये अमाउंट से आपका टैक्सेबल इनकम और भी कम हो जाएगा. सो दीज वर द 2 things offered by the government, the Niramaya scheme and the section 80DD for people with special kids. ये 2 चीज़ों से आपका फ़ायदा हो सकता है. अब आप मुझे एक चीज़ बताएं, how much do you end up saving each month? मतलब आपके सारे खर्चे सब डाल के आप सेव कर पाते हैं? Frankly, 5K is what maximum I would land up saving because देन अगेन मैंने बोला ना कि कुछ बचता ही नहीं है हमारे पास इन टर्म्स, तो फिर हमें क्रेडिट कार्ड का सहारा देना पड़ता है. एंड देन मच ऑफ योर बिल्स आर पेड बाय द क्रेडिट कार्ड. तो मेरे पास फैक्चुअली जो सैलरी बचती है, क्योंकि मेरा एक EIP एनुअल इंसेंटिव प्लान है, बोनस है. तो अभी क्योंकि ये फ्रेश जॉब थी तो उसमें पहला बोनस मिला मुझे, तो अभी बोनस की ही सेविंग है मेरे पास. लेकिन मैं LIC भी भरता हूँ जो कि क्वार्टरली मुझे 23,000 भरना पड़ता है. ठीक है. तो उसके लिए भी मेरे पास पैसे अभी फिलहाल उसी में से जा रहे हैं, EIP में से जा रहे हैं. ठीक है. क्या आप इस इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में बता सकते हो? ये जो 3 पॉलिसीज है इसमें से एक जो पॉलिसी है वो 2026 में मैच्योर होगी, 2006 से चल रही है. इसमें जितना भी अमाउंट बना है अभी तक आप एक सरेंडर फॉर्म भर के ये पॉलिसी का पूरा पैसा निकाल सकते हो. यू कैन क्लोज दिस इंश्योरेंस राइट अवे. ठीक है. आई वुड रिकमेंड आपके केस में आपको लिक्विड पैसा बहुत जरूरी है. ठीक है. बिकॉज द चांस ऑफ एन इमरजेंसी एक्सपेंस कमिंग अप
is very high. Very high. So in your case, at any point of time, you should try that you at least have 12 months of your monthly expenses at place. ठीक है? I think आपका जो पॉलिसी है, ये पॉलिसी इतने साल से चल रहा है, इससे आपको 2 से 3 लाख रुपए मिल जाने चाहिए. Having said that, ये जो पॉलिसी है, ये पॉलिसी का जो प्रीमियम है, यही प्रीमियम अगर हम कहीं और इन्वेस्ट करते तो आपका बहुत ज़्यादा फायदा होता है. ये जो 2 नई पॉलिसीज आपने शुरू की है, ठीक है, इसमें आपने अभी तक एक प्रीमियम पे किया है. ये प्रीमियम एक नॉन लिंक्ड प्लान की तरफ जा रहा है. इसमें ज़्यादा फायदा नहीं होता. इट इज़ नॉट इन्वेस्टेड इन द मार्केट और एनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. ठीक है. So in that case you won't get even any extra additional benefit from the market. नेट प्रॉफिट इतना होता है कि जो इंश्योरेंस कंपनी है वही अपने तरफ से थोड़ा दे देती है. नेट रिटर्न इज नॉट मोर देन 5.5%. बट द रियल डाउनसाइड हियर इज दैट यू हैव टू कीप इन्वेस्टिंग फॉर द नेक्स्ट 15 years. Right. एंड उसके बाद आपको पैसा मिलेगा. एंड देयर इज अ लॉक इन ऑफ 5 years. तो 5 साल तक तो आप ये पैसा टच ही नहीं कर सकते. आपके केस में, आपके फाइनेंशियल सिचुएशन में या किसी के भी फाइनेंशियल सिचुएशन में एक प्रोडक्ट जो 5 से 6% का रिटर्न देता है, उसके लिए आपको अपना पैसा कभी भी लॉक इन नहीं करना चाहिए, क्योंकि the safest instrument out there is a fixed deposit. So what I would suggest is, first things first, ये 2 इंश्योरेंस है, नॉन लिंक्ड प्लान्स, इन्हें बंद कर दीजिए. आपको लिक्विड पैसों की जरूरत है. ये दोनों का जो प्रीमियम्स है, ये प्रीमियम आपने जो भी पे किया है, ये आपको 5 साल तक नहीं मिलेगा और 5 साल के बाद भी इसका 50% ही मिलेगा आपको. राइट. ठीक है. बट ये जो आपका 10-20 हजार का लॉस है, ये पैसा छोड़ के भी इन दी एंड यू आर विनिंग. राइट. ठीक है. थैंक यू सो मच अंशुमन फॉर दिस. हाँ, तो आपके केस में जो 23,000 रुपए क्वार्टरली जो आपका प्रीमियम है, वो अब आपका खुल जाएगा और उससे आपको क्वार्टरली रिकरिंग डिपॉजिट करनी है. आपने ये भी कहा है कि बिकॉज सेविंग नहीं हो पा रही है, यू हैव टू यूज अप क्रेडिट कार्ड्स व्हेनेवर एन अनफोर्सीन एक्सपेंस कम्स. These deposits will help you when there is an unforeseen expense. Right, because then I'm susceptibly forced to use these credit cards and then fall for a trap. अब उसमें होता क्या है कि क्रेडिट कार्ड के बिल ही भरने में फिर कुछ हाथ में आ ही नहीं रहा है. और फिर लॉन्ग टर्म आप गोल देखो, अब मुझे घर भी खरीदना है. आज प्रॉपर्टी मार्केट कहीं पे भी आप देखिए, एकदम वैल्यू प्रोपोजिशन में हाई में जा रही है. तो आज अगर मैं सोच रहा हूँ वो प्रॉपर्टी अगर 60 लाख की है तो कल वो 70 की होगी, फिर 80 की होगी. तो अब वो भी कैसे, उसका अगर आप कोई सोल्यूशन बताते हैं कैसे होता है. आज के दिन लुकिंग एट योर करंट एक्सपेंसेस, यू कैन नॉट कमिट to such a big liability like buying a home. I'll be very honest. Firstly, आपको एक बेस बनाना पड़ेगा. बेस लुक्स लाइक आपके केस में एक इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए आपको. सेकंड, आप फिट हो, आपने बोला है टर्म प्लान, ये लेना है. तीसरी चीज सेविंग्स, इमरजेंसी फंड जो बनाना है वो बहुत ज्यादा कंटिजेंसी फंड एक होना चाहिए. कंटिजेंसी फंड बनाना है. सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू हैव टू फर्स्ट कंसिडर, यू हैव टू प्लान फॉर. तब तक रेंट में क्या बुरा है? रेंट में कोई बुरा नहीं है. बी पेशेंट. राइट. ऐसा नहीं है कि 45 तक घर खरीदना ही है, 50 तक घर खरीदना है. 51 हो गया, शायद 52 हो गया, बट इसके पहले पुट द बेसिक्स इन प्लेस. खैर, क्योंकि वी आर प्रैक्टिसिंग स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर्स, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि हमारे में कोई बहुत ज़्यादा नीड्स है या बहुत ज़्यादा मतलब ये है. बट येस, आई एम टेक सेवी. मेरे कंज्यूमर लोन्स भी चल रहे हैं, मैंने फ़ोन लिया है, लैपटॉप लिया है, which I am sorry I did not disclose to you. But yes, इसका क्या EMI चल रहा है? इसका अराउंड 1500-2000 चल रहा है. ठीक है. कितने मंथ्स का है? 1500-2000. 36 मंथ्स के लिए मैंने लिया है. बीच में फोन खो गया तो बुरा लगेगा और EMI भी पे करना पड़ेगा. हाँ, लेकिन मैंने इंश्योरेंस ले रखा है. ओके. For the laptop, yes, I'm paying around 4,000 for 2 years. ठीक है. नॉट बैड. ऐसा चैलेंज नहीं है, बट इन जनरल कोई भी छोटी 20-30 हजार की भी नीड है, you shouldn't have to always rely on your credit card. So आपके अभी गोल, सबसे पहला गोल है आपको हर साल एक 4 धाम यात्रा की ट्रिप करनी है. कॉस्ट कितना है उसका? We're looking at 70 to 80,000. 70 to 80,000 पर ईयर आपका ट्रैवल गोल है. तो 1 साल के गोल के लिए पैसा एकदम सेफ जगह इन्वेस्ट करना है. सिंपल रिकरिंग डिपॉजिट 5,700 रुपए की आपको RD शुरू करनी है. ठीक है. अभी इस साल 70,000 चाहिए, अगले साल वापस 70,000 चाहिए. तो ये RD आप 5,700 आप समझ के चलो कि आपको ये भगवान की तरफ जा रहा है, भगवान की वेकेशन की तरफ जा रहा है. ठीक है. हैव यू एवर इन्वेस्टेड इन द स्टॉक मार्केट? नॉट रियली, आई हैवंट. हमने ये देखा कि पिछले 27 सालों में निफ्टी 50 में अगर आपने कभी भी 7 साल से ज्यादा टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट किया है, देन 100% ऑफ द टाइम्स
you would have generated a return of 10+% Okay. per annum. Per ठीक है? So which means that आपके जो long term goals है, इसके लिए आप equity mutual funds में invest कर सकते हो. Since you are just starting, you can just invest in these 3 mutual funds. Nifty 50 fund, निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड Okay. और एक फ्लेक्सी कैप फंड. Okay. ये 3 म्यूचुअल फंड पकड़ के आप अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी शुरू कर सकते. नाउ वन मोर थिंग दैट आई कैन नोटिस हियर इज दैट करंटली बिकॉज ऑफ योर डिफरेंट सिचुएशंस, राइट, चैरिटी हो गया, फिर बाद में आपका मेडिकल कंडीशंस हो गए, फिर देन यू स्टेइंग अवे फ्रॉम योर फैमिली, योर एक्सपेंसेस आर ऑन द हायर साइड Right. एंड यू कैन नॉट अवॉइड मोस्ट ऑफ दीज एक्सपेंसेस. ठीक है? इज देयर अ वे फॉर यू टू have another source of income or additional sources of income? So I'm a medical practitioner. I can practice on my own, but anything which is in the conflict interest of my company is to be avoided. Of course, because we know it's moonlighting these days. The reason why I'm asking about a secondary source of income is that I don't want you to rely on credit cards Right. in the future, right? Because that can end up becoming very Very expensive. expensive. Like in the last 2 or 3 hours since we have been talking, right, I got a lot of clarity about how things are very different of our parents with kids Special of kids, special yeah. needs, right? Yeah. So thank you so much for sharing your story, and I am sure that once you have started speaking about this, a lot of people will come to our platform Right. and share their journey so that we can explore all the different types of government schemes, insurance policies, tax benefits Right. for every single category. Right. क्योंकि आज के दिन इनको निरामय स्कीम और सेक्शन 80DD के बारे में पता ही नहीं था. अब आप सोचिए ऐसे कितनी सारी गवर्नमेंट स्कीम्स है, कितनी सारी इंश्योरेंस पॉलिसीज है जो अलग अलग लोगों की जरूरत के हिसाब से गवर्नमेंट या फिर टैक्स बेनिफिट्स प्रोवाइड की गई है. सो प्लीज come to the show, fill up the form so that we can reach out to more and more people. Hitesh ji, thank you so much. Thank you so much. Thank you so And much. do hit the like button. That's the end of today's video, guys. Video में कुछ भी अच्छा लगा, please hit the like button. Your love and support keeps us motivated.